Welcome in this live session. And today I have one important guest from India. He has more than 40 years of experience in this field and he treats lots of cancer patients. And he is the cancer specialist in, in especially in Kolkata. And the patient contacts him from all around the world. And today I would like to welcome Dr. Shoaib Alam Khan, sir, from Kolkata. Concentration. Vast experience. He has a vast experience, and I have seen many times his prescriptions and his way of understanding the case and his depth of knowledge in materia medica and organon of medicines. Sometimes when we read medicines, when we take the case, so many things where we are stuck. And during this stagnation, organon of medicine always help us. Our pure teachers are patients. If we have a patience, if we have a keen knowledge of organon of medicine, and if we have a keen knowledge of materia medica, we definitely uh, treat these patients rapid permanently. So today we are going to discuss Aconite. Aconite is not a acute remedy, but many times where I saw in prescription of Dr. Shoaib Alam Khan, sirs, he prescribed Aconite in chronic cases. If he can prescribe in chronic cases, what kind of symptoms he see in patients? This is the biggest question for everyone today. Because most of the times in newcomers, they are giving Aconite in fever, just only in fever, or sometimes in cough or acute conditions. But no, if you have a keen knowledge, if you have a vast experience, and if you are dealing with patient truly and use your knowledge in the patient, we can prescribe Aconite in advanced pathological cases. Even I personally saw his prescriptions of Aconite in cancer cases. And you will shocked after watching the video of these cancer patients, pathologies reduced, the patient feel so much better. So today, if you are joined together or if we are joined together for this discussion, our discussion is only based on constitutional symptoms. How to prescribe Aconite in chronic cases, what kind of symptom we need to understand, and what type of symptoms we have to remain remembers in our brain so we can understand more deeply this acute remedy but useful remedy in all type of cases. And I would like to welcome Dr. Shoaib Alam Khan, sir, and I would like to thank him. So he gave his important time to us. So I already talked with 5 minutes before he was taking the case, and he has lots of patience there. So still he is with us today to give information, to share his experience with all of us. And during this conversation, if you have any question, please write it down. So after the whole descriptions, whole discussion, we will go for
questions one by one if you have any. So I am not going to waste any other times, and I will go to Dr. Shoaib Alam Khan sir so he can start his today's lecture. Thank you, sir. थैंक यू डॉक्टर देविंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। अभी हम आपको उनको टाइम दिए हुए थे, मेरा पेशेंट था, बिजी थे, सीरियस केस था, देख रहे थे, उनको बोला थोड़ा सा बैठिएगा। एक ऑटिज्म का केस है बच्चा का, वो दूर से आता है, अभी आया हुआ है, बैठ के है, उसका 1 महीना का दवा लिखते हैं, उसको बैठाया है, लेकिन यहाँ टाइम दे दिया है। तो एकोनाइटम नेकलेस, द एक्यूट रेमेडी, लेकिन वो जो एक्यूटनेस है, जैसे डॉक्टर बोगर एक्सप्लेन फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, टेंशन। डॉक्टर बोगर फर्स्ट पेज फर्स्ट लाइन, डॉक्टर देविंदर सिंह टेंशन, और कोई वर्ड नहीं है। वायलेंट, acute, acutely and violent action. डॉक्टर बोगर, सोच लो, फर्स्ट पेज पर नहीं, बिग लेटर इज टेंशन। व्हाट डू मीन बाय टेंशन? acute, violent tension. And होगा materia medica explanation, because we are homeopath, target patient. अभी देविंदर, अभी हमने ग्रीस में पेशेंट देखा ऑनलाइन से, वहां के डॉक्टर है वो फेमस, वो हमारे यूट्यूब में है और मैंने फेसबुक पे भी दिया है। मैलिग्नेंट केस है कैंसर का, तो वो आफ्टर 2 वीक ट्रेमेंडस रिजल्ट। फिर अपने वाइफ को उन्होंने दिखाया, वो भी डॉक्टर है वहां के, तो उन्होंने कहा कि हम लोग का होम्योपैथिक एकदम, उन्होंने खुद कहा, जीरो है। और बायोकेमिक दवा जो होता है, जो बोरिक में भी पर्टिकुलर साइट का जो मदर टिंचर ये सब होता है, तो केली आए, अगर ट्यूमर है तो ये सब देते हैं उनको। कैंसर 2 दफा ऑपरेशन हुआ, लीवर कैंसर है। आफ्टर 2 वीक ट्रेमेंडस रिजल्ट, उनको हमने लाइकोपोडियम दिया। वो ऐसे ही एक बता रहे हैं, तो हमने देखा वहां पे जब क्वेश्चन किया, तो हमने ये देखा कि बहुत पुअर होम्योपैथिक है, मतलब वो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं देते। तो हमने उनको मेंटल सिम्टम जब बताया, एक्सप्लेन किया, उनका लाइको का कहा, तो बोले यस यस यस। तो हमने दिया आफ्टर 2 वीक ट्रेमेंडस रिजल्ट, वो मेरे यूट्यूब में है। तो ऐसे एक तो दिया हम। तो हम बताना चाह रहे थे कि हम लोग को क्या देखना है। आखिर जो टेंट मटेरिया मेडिका, डॉक्टर ह्यूज, इनकलाब एंड बोगर, फर्स्ट पेपर टेंशन, बस एक ही वर्ड लिखा, टेंशन, वायलेंट। व्हाट डू मीन बाय टेंशन? वायलेंटली एक्यूटनेस। कैसा? हम लोग जानेंगे ही नहीं भाई। रिपर्टी, रूबरी ये सब भी बहुत चीज ऐसा किया जाता है, खाया जाता है, दिया जाता है, लेकिन ये जो वर्ड है, तुम हमको बताओ, ये कहाँ चलाओगे तुम?
ये तो मेरा भी वर्ड नहीं है कि हम अपना पैदा कर रहे हैं। ये बोगर में लिखा फर्स्ट पेपर में सिर्फ एक ही वर्ड लिखा हुआ, टेंशन, बिग लेटर, वायलेंटली एक्यूटनेस, एक्यूट वायलेंट अटैक। व्हाट डू मीन बाय, कैसा वो बेचैनी, वो कैसा टेंशन है, वो कैसा इंग्यूश है। एनिमे ने एक जगह लिखता है एलन स्किनोट पे सेकंड पे कि बिगर मोरल मेंटल सिम्टम में नॉट प्रिस्क्राइब एंड थिंक अबाउट एकोनाइटम रेप्लेस। ये भी मेरा वर्ड नहीं है, ठीक है ना डॉक्टर साहब, रविंदर भाई। लुक अप टारगेट पेशेंट, जो हम लोग नहीं करते, वो बेचैनी, वो टेंशन। जैसे बोगर एक जगह लिखा, फिर एंग्जियस लुक। व्हाट डू मीन बाय एंग्जियस लुक? और भी जानते हो कैसा लिखा हुआ है? बिग लेटर, एंग्जियस, बिग लेटर, एंग्जियस लुक, फुल स्टॉप, Yes, sir. एंग्जियस लुक। तो एंग्जियस लुक कैसा होगा? ये देखो एंग्जियस लुक। हाँ ठीक है, नहीं ठीक है, अच्छे हैं, नहीं तबीयत ठीक नहीं लगता। एंग्जियस लुक जिसमें टेंशन है, फियर है, एंग्यूश है, रेस्टलेस है। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं ठीक है। एंग्जियस लुक, विदाउट दिस फेस, एलन की नोट, अलग एक्सप्लेनेशन, बोल्ड लेटर, great fear and anxiety of the mind. Bogar tension, bogar anxious look, big letter, full stop, anxious look. नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ठीक है, ठीक है, नहीं ठीक, मुस्कुराहट फेयर, आंख फेयर, मूवमेंट फेयर, एंग्जियस लुक। नहीं मम्मी ठीक है मम्मी, इतना भूख नहीं लगता है, कहाँ जाते घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता, मन नहीं अच्छा लगता है, डर लगता है, तो घर ही में हम लेकर एंग्जियस लुक कब से है? अरे 3 साल से है डॉक्टर साहब वही। अरे बाप डांट दिया था इसको, पढ़ाई लिखाई नहीं गया, तो उसके बाद से बाप से डरता भी है, फेल हो गया था, उसके बाद ही से 3 साल से वो जो डांटे, उसके बाद ही से पेपर भी खराब हो गया था। डांटा जब से, एक थप्पड़ मारे थे इसके अब्बा पहले, तो बस उसके बाद से एकदम बाप से डरता भी, डरा डरा रहता है, पढ़ाई भी कमजोर हो गया, फेल हो गया था, तबियत इसका भूख लगता नहीं है ठीक से। ये हम एक तो केस देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे, बोले बस ऐसे ही रहता है, मतलब हम बोला 3-4 साल पहले, बोले ठीक था, खेलता कूदता। जब से अब्बा इसको डांटे, एक थप्पड़ मारे, अब्बा बाप से डरता है, फेल हो गया था पेपर। थोड़ा दिमाग मेहनत तो करता है, लेकिन उसके बाद फिर वो ऐसे ही, डॉक्टर साहब ऐसे ही डरा डरा रहता है। हम बोला क्या ये 2-3 साल? बोला हाँ 3 साल से इसी तरह, मतलब एकदम कहीं जाता नहीं, पहले खेलता कूदता था, सब देख रहा था। अच्छा ठीक है, चल। अरे डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। एंक्सस लुक वायलेंटली 3 साल से है कंटिन्यू। तो आदमी बोलता है कोई कोई क्रॉनिक, वो एक कूटनेस जिस तरह का सब पिक्चर बना उसी तरह है एंक्सस लुक। लो अब हम एक्सप्लेन कर रहे एक और चीज। डॉक्टर इन क्लार्क मटेरी में डॉक्टर ह्यूज एक्सप्लेन, Dr. Hughes explained, acutely remarked that the condition to which aconite is homeopathic is
one of is one of Dr. Hughes' explanation, homeopathy. Tension. फिर अगर सुनो, Dr. Hughes has acutely remarked that the condition to which aconite is homeopathic is one of tension. And his word gives the best idea of the action and sphere of aconite. Dr. Hughes. Now, other Dr. Guernsey explanation. The mental concomitant, the most striking moral part of the prescribing of aconite, and mental, the genius of this highly useful remedy is through the mental sphere, mental share, and it is always important to consider the mental symptom great and uncontrollable anguish, anxiety, and great fear are characteristic of the aconite disease. Guernsey genius explanation. Uncontrollable tension and anguish. ये स्पेयर एक स्टेटस पहले हम आप लोग को दे दें, ताकि आप जितना कोशिश करें, भूलना नहीं चाहिए घमंड की बात, अल्लाह माफ करे। हो सकता है हम मर जाए तो फिर सुनने नहीं मिलेगा देविंदर। कभी कभी अल्लाह ताला जो होता है ना, गॉड अपना गधा बना लेता है। जब अपना गधा गॉड बना लेता है तो गधा जो है ना, वो और जानवर से बहुत मजबूत हो जाता है, रास्ता दिखा देता है। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह का ही गधा बने जाए। घोड़ा हो जाने से फिर काम खत्म हो जाता है। गधा रहेंगे ना तो आखिरी आखिरी तक फिर घोड़ा बनने का उम्मीद रहेगा। आदमी का तालीम जो होता है ना, जब वाकई ओरिजिनल तालीम या कोई भी चीज, जैसे दिलीप कुमार एक्टर रहा, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, मुकेश, सबका हम भी बहुत फैन है, किशोर कुमार, ये सब चीज वापस नहीं आ सकेगा। मोहम्मद रफी की जो आवाज है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, ये कुछ गाना ऐसा है, मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कली, जब सुन लोगे तुम तो रुक जाओगे, पूरा माइंड पूरा चेंज हो जाएगा। लगता है कि माइंड में खाना आ गया, ताकत आ गई। ये अब आवाज नहीं है। तो ये लोग से तुम मिलोगे, रफी को हम देखा है, बातचीत देखा है, तो लता जी का, दिलीप कुमार से, धर्मिंदर का बयान देखा है, दिलीप कुमार के बारे में कहा है कि मैं धर्मिंदर का बहुत बड़ा फैन हूं। फिल्म हम बोलना बहुत कुछ जरूरी भी होता है इस चीज में। हम जो है स्कूल भट्टा मतलब मार के यही करके हम फूल पत्थर देखने गए। आप फूल पत्थर से बोल दो, अच्छे सेमिनार बोलो, बात करने के लिए मना करो, समझ गया। हम फैन रहे हैं बहुत, तो उसका इंटरव्यू सुनते हैं दिलीप के बारे में, उसकी एक्टिंग के बारे में, कोई पैदा नहीं हो सकेगा। मतलब उनका बात क्लास में जाने से मालूम नहीं होता है कि इतने बड़े स्टार है, इतना भाई की तरह मिलना, इतना प्यार। अमिताभ बच्चन का देखकर लता जी का बात सुनते हैं, तो जब अल्लाह ताला
कुछ देते हैं तो तुम्हारा बहुत कुछ तोड़ भी देंगे, तभी देते हैं, तुम्हारे में कुछ होगा तभी, ऐसे नहीं मिलता है। ठीक, तो हमारा जो एकोनाइट है, हमको इतना प्राउडली अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से कि ये चीज दविंदर रहोगे जिंदगी रहा, ये नहीं सुनने मिलेगा। क्योंकि एक अनयूज लुक और एक टेंशन पर हम 10-20 साल तक काम किया, खटे प्रैक्टिकली आईना के सामने, वो नहीं ताकत है। और हमको हमको सुनो एक बात दविंदर, हमको अल्लाह ने रिजल्ट दिया है खराब खराब बीमारी में, और जादू की तरह। तो बता के हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, ये चीज नहीं मिलेगा। ये जब तुम्हारे पास ही आया ना, हम तुमसे भी रिक्वेस्ट करेंगे देविंदर, हम बहुत सा मेरा जो वीडियो है और हम बहुत सा बोले ड्रग के बारे में, उसको किताबी शक्ल दो। हम तो भाई नहीं, टाइम हमको मिलता, कुछ नहीं कर पाएंगे, इसके लिए कुछ करो, इसलिए कि नहीं तो कहना है कि ऐसे ही रह नहीं जाए। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में रहे, हमारे में रहे, होम्योपैथिक बचा रहे। ये फीलिंग, ये चीज हनीमैन ने कहा बेगर ये देखे, होम्योपैथिक एकोनाइट प्रिस्क्राइबिंग नहीं है, और इस पर प्रिस्क्राइब करने से तुमको 10 मिनट के अंदर रिजल्ट मिलता है। हम देहरादून भी गए थे, वहां की लेडी उडी लोग एजेड है, कभी होगा तो बात करा देंगे। इसका रिजल्ट के बारे में तुम सोच नहीं सकोगे कि एक लेडी 20 साल 30 साल पहले उसका बच्चा पैदा होता है, और उसको कोई जैसे माना में कोई है जो पामिश टूमिश कोई बोल दिया था कि बच्चा पैदा होगा आपके, ये तो मर जाएगा, तो फेयर 20-30 साल का इस तरह कराता है और कितना नुकसान करता है, ये हम देखा। और जब हम ये दवा दिया है तो पेशेंट बोलता है 1 हफ्ता का 20-30 साल का टेंशन, एंग्जाइटी, डर वो गायब हो जाता है। ऐसा होम्योपैथिक है। क्या है कि हम लोग जो है को नॉलेज नहीं है, हम लोग फेल होते हैं अपने नॉलेज की कमी से, और कुछ नहीं। चलो और एक्सप्लेन इट। ये हमने एक्सप्लेन किया अभी करेंसी को, बहुत जबरदस्त। फिर एलेंस की नोट आता है, तुम भी जानते हो सब कुछ। आफ्टर फेयर एंड whatever may be the disease and exposure to cold northwest हवा ठंडा बढ़ना and causing factor, these are the after flight of fear causing factor is the more grand keynote. Now other in Boger robust habits, मजबूत बदन हाथ का, टेंशन and sudden violently acute, sudden violently acute, sudden violently acute टेंशन जो हुआ, अरे अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, वो 2 साल 3 साल 4 साल खाना पीना, एलोपैथिक मेडिसिन सब चल रहा, सब, लेकिन जब तक कोटाइट नहीं पड़ेगा वो ठीक नहीं चल रहा। सारा कितना को मेडिसिन चल रहा, नींद का ये सब, एको नाइट क्या मेडिसिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक जॉन्डिस लड़की को 2 साल 3 साल जिसका एसजीपीटी 2000 हो जाता है, साला मर जाए, हमने ट्रीटमेंट किया। टीचर का डर खौफ से उसको जब मैंने बच्ची से लिया है, फिर वो 2 साल इंटरव्यू लिया, वही चेहरा पर देखा। ये हम एक्सप्लेन भी कर चुके हैं देविंदर के, तो माँ बाप को भी समझ में नहीं आया, और पढ़ाई के डर से, पढ़ाई के डर से, पढ़ाई अंकल ठीक है अंकल,
हमने नहीं अंकल, माँ के सामने भी जैसे कुछ नहीं बोली, माँ बाप को हटाया गया, हम समझ गए, अकेला में पूछा अंकल, वो टीचर अंकल है ना, बहुत डर लगता है, बहुत टास्क देते हैं, बहुत डर लगता है। अच्छा वो पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे जो अंकल, पहले पढ़ाओ अच्छा थे, ये बहुत, अरे वो कोई मिस थी, ये मिस बहुत अंकल, बहुत ही करती है, तबियत कुछ नहीं थी, बहुत हम नहीं कर पाते अंकल। हम लोग बोले अम्मी बिगड़ेंगे, अम्मी बोलती पढ़ाई क्या करता, हम लोग कुछ अम्मी को समझा देंगे, तुम कुछ घबराओ। अच्छा अंकल समझा दीजिएगा अंकल, एक बच्ची जिसका खिलने का टाइम मुरझाया हुआ, सब करा देंगे बेटा। उसके बाद वो जाते हैं, माँ बाप को बुलाते हैं, बाप है, हम बोला देखिए ये क्या इतना कौन पैसे, बोले डॉक्टर साहब थोड़ा पढ़ने का रहती है, हम लोग तबीयत खराब है, इतना पढ़े, बोले सोए सोए, बोले पढ़ लो, हम लोग सोए सोए भी पढ़ लो, नहीं चाहती है पढ़ना, डर है, पढ़ाई का खौफ है, वो टीचर का, वो नहीं ले पा रही है, उसका मतलब टास्क नहीं कर पा रही है। आप 2 रोटी के बदले 10 रोटी दीजिएगा तो उल्टी पैखाना नहीं होगा, रोज उल्टी पैखाना कराइएगा। उसको बैठा के तब उसका बाप बोलता है यस डॉक्टर, ठीक, वो हमको भी बोलिए कह दो टीचर के बारे में। हमने पहले भी टीचर पढ़ाता था, बोला पहले बोलती थी, बोले नहीं वो ठीक, हमने ये सख्ती करती है, वो नहीं ले पाती होती, ऐसे टीचिंग होता है। आप मेरे सामने अभी फोन करके उसको मना कर दीजिए, जब तक स्कूल तो कुछ नहीं पढ़ेगी, जब तक वहीं तक मिशन नहीं होगा, फिर तो मर जाएगी। ऐसा हालत दे दिया, खत्म। रविंदर, ये मेरा केस है, यूट्यूब में होगा, हमने किया, देखा उसका चेहरा में, बोला आपके सामने, वहां फोन की, बोले बताइएगा डॉक्टर मना कर दिया पढ़ाना लिखा। हम लोग जब तक हम परमिशन नहीं देंगे पढ़ेगी नहीं, और जिसको पढ़ाइएगा टीचर को पहले बोल दीजिएगा, प्यार मोहब्बत से पढ़ाने के लिए, हल्का हल्का था, जिंदा रहेगी तब ना पढ़ेगी, तो उसकी माँ बोला आपका वजह से हुआ है सब कुछ, इसमें मर जाता है, बोले सॉरी करके फोन करके मना कर दी, और ये मुस्कुरा रही, चेहरा आपका शोलो वो खत्म हो गया 80% यहीं पर। फोन करके मना दी, एक नाइट हम बोले 10-15 पर, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, रिपीटेड वन, एक हफ्ता के बाद बोलते बहुत खेल कूदे, बहुत अच्छा, 2 हफ्ता के अंदर सारा गिर गया, 500-600 हो गया, खत्म। That is aconitum necklace. ऐसा पैथोलॉजी जॉन्डिस 2000 जीपीटी एसओपीटी हो गए, पीला जॉन्डिस बिलिरुबिन 7-8 के 9 था, एक बहुत दिन का बात। Tremendous, that is recondite. Anxious look. और ये लिखा हुआ सडन वायलेंटली ये कूट, टेंस मिस आएगी, कल फिर आएगी, फिर काट देगी, टेंस डोज, तो खत्म हो जाती है, नहीं होगी पिछले, कोई इलाज दुनिया का डॉक्टर नहीं कर सकता उसका, सिवाय होम्योपैथिक के। इतना इलाज तो 2000 फिनिश, सडन वहीं पर माँ को बोला, फोन की, माँ हमरा मेरे सामने फोन कर मना कर दीजिए, विदाउट पे चेहरा खिल गया, मुस्कुराहट बच्चा, that is recondite, that is tension, uncontrollable anguish and tense, great fear, anxious look, सब जमा होके मुस्कुराना, रोता हुआ मुस्कुराना, that is aconitum necklace. Now other Alan note, create fear, anxiety of the mind, and Boric is explained state of aconite, fear, anxiety, anguish of mind and body, physical and mental,
restlessness, and fright are the most characteristic manifestation of aconite and boric explanation. In Bogar, again mind collapse, terror like fear, aconite of terror like fear and anxious look, terror की तरह and anxious look. That is aconitum necklace. Without mental call, without face. जैसे हेलेंस की नोट पे सेकंड पेज में हनीमैन ने कहा, not complain, not prescribe of this action. And this is status and look up. The beautiful prescribing, the Hahnemannian prescribing the aconitum necklace. Another, ये हो गया आपका in Bogar, forebodings predicts time of death. अब बचेंगे नहीं हम, कल तक मर जाए, कोई ऐसा डिजीज नहीं, कोई ऐसा बात नहीं, कुछ भी नहीं, डर खौफ ऐसा, अब लगता है हम बचेंगे नहीं, अब 2-3 रोज के अंदर ही लगता है कि कल परसों ही ऐसा डेथ कर जाए, टाइम तक पहुंचा देगा, रिजेक्ट कर देगा. कोल्ड लगा, सुबह के बुखार, आज आज अरे बाप रे बाप, अब बचेंगे, अब बचेंगे. Intense restless talking about the agony, acute, violent, intense restless talking about in agony. टॉस की था, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप रे, अब बहुत सर बुखार लग रहा, बाप कब हुआ भाई, अरे कल सुबह चल गए सब, अरे हवा लग गई ठंडा, उसके बाद सब ने चला बुखार हुआ, तबीयत खराब, बहुत ठीक आ रहा, एकदम लग रहा है कि बाप रे बाप जान निकल जाएगा, एकदम 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 टॉस लाइक एगुनी, टॉस लाइक, आप बचेंगे, अब लगता है कि डॉक्टर साहब लगता है कितना मर जाएंगे डॉक्टर साहब, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप. एकोनाइटम नेकलेस बुखार देख रहे हैं तो 100 है, मुश्किल से 99. दैट इज एकोनाइट. Ellen's note material, great fear and anxiety of the mind. And second, December 4 later, intense restless, tossing about in it. Great thirst, thirsty, cold water, ठंडा पानी पिएगा, anguish. This goodness. एकदम toss like. आलू 199 बुखार. That is aconite necklace. और सुनिए, एक केस बहुत अच्छा बोलेंगे आपको. म्यूजिक इज अनबेयरेबल, वो बता दिया आपको. मॉर्निंग थर्स्टी पेशेंट होता, और भी ये हॉट रेड चिक्स होता है, स्किन फीवर के टाइम स्किन ड्राई एंड हॉट होता है. These are the features during fever condition. But mental commitment is so strong. Without mental commitment, not thinking about the aconitum necklace. Now, fright, shock, cues, bad action, emotion, these are the modalities marking. And other very important causing factor, grand keynote like fear and after fright. After fright, the grand keynote like cause factor of the aconitum necklace under thinking about. अब हम तुमको बता दे रहे हैं, नहीं है, अच्छा 1 मिनट, राजा ना टाइम हो रहा है. ठीक है. अब
अब केस आपको बताएंगे, इसलिए कि केस जो है बड़ा जबरदस्त एक केस है, उसको बोलना है। एक जो है 2.5-3 साल के बच्चे का केस है। ये सब केस को अल्लाह ने अच्छा करा के कम से कम हमको अल्लाह ने ये दे दिया है गिफ्ट कि चलो तुम वाकई होम्योपैथिक का एक बहुत अच्छा डॉक्टर, गधा डॉक्टर हो गए। समझे दविंदर? ये केस में जब रिजल्ट मिला तो अल्लाह ने ऐसा कराया कि नहीं, अल्लाह ने हमसे होम्योपैथिक करा दिया, अपना गधा बना लिया इस केस में। और तुमने क्या किया है, बहुत होम्योपैथिक पर समझो एक तरह से एहसान किया है, ये हम अपने कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। अल्लाह ने यहाँ पहुंचाया। तुमने जो एकोनाइट आज कराया है, छोटी मुँह बड़ी बात है, ये नहीं सुनने मिलेगा पूरे वर्ल्ड में। ये कॉन्फिडेंस से आज कर दे रहे हैं। आज जो भी सुन रहे हैं मेरे दोनों सुनेंगे, और इस केस एकदम प्रैक्टिकल एनिमेनियन एकोनाइट, ये जो तुमने सुना दिया है, चलो हम ये मरे अल्लाह मर गए कोई बात नहीं है, लेकिन ये जो तुमने करवाया है, जो जहां सुना है, ये नहीं सुनने मिले। ये हम देविंदर दावा के साथ लिख के बोल रहे थे कोर्ट के कागज में, ये नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने इसको हमारे कैसेट में रिजल्ट दिया है एकदम एनिमेनियन। क्या था, 2-3 साल का बच्चा था, दूध पीता था, डेंटिशन भी चल रहा था उसका। वो सब फैमिली पेशेंट है, मेरे एक तरह से रिलेटिव में है। बहुत गौर से सुनोगे देविंदर तुम भी। ये सब क्या है, दिन भर पहले रिसर्च का एक एक कॉन्सेंट्रेशन फिक्स करने से इसका फायदा होता है। तो बच्चा 2-3 दोस्त, उसकी फैमिली रिलेटिव है मेरा, एक तरह से ताल्लुकात वाले लोग हैं, सब हमारा दवा खाते हैं। तो 2-3 दोस्त से बोले हैं, सब बिहार के लोग हैं, 2-3 दोस्त से बोले कि देखिए ना, सडन खाना पीना नहीं खा रही है, बुखार बुखार की तरह रह रहा है, कुछ लेने नहीं मान रही, खा नहीं रही, पी नहीं रही, और खाते में उटकी की तरह कर रही है। अच्छा कब रोके? बोले 2-3 रोज हो गए। तो हम घर ही में गए थे, हमारा दवा भी चलता है, केमोविला उन लोग को दिए हुए थे। तो बोले केमोविला करते आराम मिल रहा था, तो बोले कि ये 2-3 रोज से हो रहा। बोला अभी तो अच्छा क्या हुआ था, कोई बात है सर? कोई डर गई, कोई डांट गई, कोई ऐसा? लेकिन हम उसका देखा, चेहरे पे एक डर देखा हमने, टेंस देखा वो बच्चा का, 3 साल का बच्चे को। क्या बोले, खेलती उड़ती है, खड़ा होती है, हंसी नहीं, वो नहीं, टेंस डर। गौर से एकदम दविंदर सुनोगे, बहुत सीरियस सुनने का एक केस है, जबरदस्त। समझ गए ना? तो हमने पूछा कोई बात, उनकी माँ को भी देखते थे हंसी मुस्कुराती, तो बात किया हम। तो हम बोला कि दूध आपके पीती है? बोले हाँ पीती है। बोले अभी दूध भी नहीं पीने मांग रही, गरम गरम बदन लग रहा है बुखार की तरह। उनकी सास भी थी, हस्बैंड थे। तो फिर हम, हमने क्या किया कि हमने उसको हमने क्या किया देविंदर, उनकी वाइफ से सबको हटा दिया। हम उनकी वाइफ से पूछा क्या हुआ, कुछ ऐसा बात, पूछी तो उसे क्या हो गया। तो हम वाइफ से पूछा आपका दूध दूध पिया था? बोला हाँ, दूध दूध पीने के बाद पीती थी, अभी नहीं पीने मांगे। कब लास्ट से? बोला कल की परसों के, तो का मतलब सुबह सुबह, मतलब पी, उसके बाद से ही तबीयत ठीक नहीं। तो बात पूछने लगे, तो हम बोला क्या आप लोग का झगड़ा उगड़ा कुछ ऐसा शौहर से ही सब? हम बोला देखिए,
बोले नहीं डॉक्टर साहब ऐसा तो कोई बात नहीं। हम बोला देखिए हमको ऐसा लग रहा है कि बच्चा डर गया, बच्चा छोटा उसका तो हम नहीं, आपका दूध पीता है, आपका दूध पीने से अगर आपसे कोई झगड़ा हुआ है आपसे स्वास्थ्य कोई ऐसा बात तो हमको बता दिए, मेरा दवा हो जाएगा। सबको हटा दिया। हम बोला सास स्वास्थ्य से, बोले हाँ सास से झगड़ा हुआ था मेरा, तो मेरे शौहर बहुत बिगड़े हमको आके। हम बोला क्या तो बिगड़ता है शौहर? बोले हाँ बिगड़े हमको बहुत। अब बोले माफी मांगो नहीं तो तुमको हम तुम्हारे नैयर घर पहुंचा देंगे, तुमको छोड़ देंगे। तो वहां जाके सीधी साधी बोलते बहुत, हम लोग क्या बहुत बिगड़े? बोले बहुत बिगड़े। बोले देखो हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते हैं, लेकिन माँ से तुमने माँ से माफी मांगो मेरे, और नहीं तो तुम यहाँ से चली जाओ, छोड़ के तुमको हम छोड़ देंगे। तो ऐसा बात बोले तो बोले कि हम रोने लगे, थोड़ा डर गए। तो हम डर गए और रात में हम बहुत रोए। हम रात तो रोई, आप खाना वाना खाए तो उन्हें नहीं, और रोने लगे हम कि छोड़ देंगे हमको, इसका हमको डर डर आ गया। बोले नहीं तो तुम माफी मांगो। तो उसके बाद हम तो कल भी मांग लिए वो इधर वो। तो हम बोला कि फिर रोने होने के बाद क्या उसके बाद दूध पिलाई थी आप? बोले तो हाँ वो भोर में। तो क्या उसी के बाद थी? बोले हाँ। फिर उसके शौहर से पूछा, अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, बिकॉज हमको वो फ्लाइट चाहिए एकोनाइट का। तो हमने उसके शौहर से फिर पूछा केले में। हम बोला आपसा हुआ था? बोले हाँ केला में। बोले हाँ हुआ था, बिगड़े थे। हम बोला आपकी वाइफ आप पर थोड़ा चढ़ के रहती है कि आपका लिहाज करती है, आपसे थोड़ा डरती है? बोले नहीं वो शुरू से जब से शादी हुआ है हमसे थोड़ा लिहाज करती है, डरती है, मतलब खुल के हमसे नहीं बात कर सकती है। तो अम्मी के साथ झगड़ा हुआ और अम्मी से चिल्ला के बात की तो हमको मालूम हुआ। तो वही हम बोला तुम अम्मी से माफी मांग लो, तुम्हारी माँ की तरह है। हमने उसको समझाया, और नहीं तो फिर हम तुमको पहुंचा देंगे तुम्हारे घर, हम छोड़ देंगे। तो हम बोला शुरू से जब से शादी हो तो लिहाज डरती? बोले हाँ हमसे लिहाज करती और डरती है। तो वो साइड हम बोला उनको जब बताया हम, देखिए वही डर के बारे में डर गए कि हमको कहीं छोड़ दीजिएगा, और वो जो दूध डर के पिलाई ना वही बच्चे को नुकसान हो। तो डॉक्टर साहब ऐसा होता है? जी हाँ, अभी देंगे देखिएगा ठीक हो जाएगा। बोले तो बोला बोला ये तो अजूबा होम्योपैथिक है। तो हमने उसको 15-15 मिनट में 12-12 मिनट में हम बोला खिला के हमको कल बताना। 12-14 खिला खिलाने के बाद ही क्या करना, उसको भूख को खुलने लगा, खत्म। फिर हम 2-3 रोज तक देते चले, इधर फ्री tremendous, tremendous, tremendous. That is econite. That is econite. अगर अगर उसका हस्बैंड ये बोल देता नहीं नहीं तो बदतमीज लड़की तो साला हमेशा बहस करती है, झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, हमेशा बहस करती है, लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, तो हम एकोडाइट नहीं देते। रविंदर बी केयरफुल। वो अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट करती है, लिहाज करती है, डरती है। और जो घुला मिला शौहर से रहता है, जो चाला लेती है औरत, जो बदतमीजी हमेशा करती है, चली रहती है, मतलब हंसी मजाक करती रहती है, कोई रिस्पेक्ट होता नहीं। अगर ये होता तो एकोनाइट मेरे हिसाब से हट जाता। उसको सही मानों में फेर आ गया कि कहीं छोड़ देंगे तब। और तो बिहार वार के रहने वाली अपने शौहर वर का रिस्पेक्ट इधर को डरता है। माँ बाप क्या कहेगा, भगा देगा, माँ बाप पसंद नहीं करेगा। मुस्लिम घराने में नहीं होता है। अगर माँ बाप भगा देगा आपको, जूता से मुंह रख देगा, तो माफी माफी मांगी, वो माफी मांगी। तो उसके शौहर भी बोला हाँ वो डर गई, वो बहुत सीधी औरत, तो उसका खानदान लोग बहुत सीधा लोग है, ये सब चीज पसंद नहीं, डर गई। बोला तब आप उसको भी बना लीजिएगा प्यार से, और तो उसका दूध पीने बच्चा पर इफेक्ट होता है, फिर उनको भी कोई बीमारी हो जाए। बोले नहीं डॉक्टर साहब जो आप ये चीज बताए हमको तो मेरी तबीयत खुश हो गई।
फिर रिजल्ट होने के बाद वो लोग बहुत ही मतलब बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और ये 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 जो है बड़ा यादगार है। और ये यही रविंदर, यही होम्योपैथी की खूबसूरती, यही होम्योपैथी है। और हम आज भी मेरा एक केस है, बहुत अच्छा केस है। अभी तो टाइम है, पौने 10 हो गए। हाँ है, बता रहा हूँ। एक बच्चा का जो हम बीच बीच में बोल रहे थे, एक बच्चा था जो 15-16 साल का होगा। वो मेरे पास, देखो क्रॉनिक केस के मेरे पास आया। वो शाकिर मेरा एक तो सेमिनार चल रहा है, चर्च में, फिर हम बात करते हैं। तो वो आया, उसके माँ बाप लेके आए, बोले डॉक्टर साहब, मेरे पास लेके आए वो लोग इलाज कराने के लिए कि डॉक्टर साहब इसको 3-4 साल से भूख उक नहीं लगता, वजन घट रहा, वजन कम हो रहा, वजन घट रहा है, और भूख नहीं, बुखार बुखार होने लगता है। मतलब शाम से बदन हाथ में दर्द और फीवरिश फीलिंग होता है, सुबह उठता भी है तो बदन में बड़ा बुखार होता है। अच्छा, कभी कभी 100 बुखार भी आ जाता है, भूख नहीं लगता, वजन घट रहा है। ये कम से कम तो 3 साल से चल रहा है। एलोपैथिक दवा भी हम खिलाए उलाए हैं, और देखिए ना, समझ में नहीं आता है क्या है ऐसा। बोला 3 साल में, और अच्छा, ये तो 3 साल में, हाँ। बोला अभी क्या है कि वो शायद ये 9 या 10 में था। हाँ, 9 में था शायद। तो हम पूरा पूछा उछा, केस टेकिंग किया, तो हमने उसको सिम्टम लेके हमने उसको रास्टक दिया। रास्टक के बाद ट्यूबरकुलाइनम दिया था, लेकिन 1 महीना भी दिया तो फायदा नहीं हुआ कुछ। फिर फिर हम केस टेकिंग किया, तो हमारा पढ़ाई लिखाई में, तो उसकी अम्मा बोली कि पढ़ाई लिखाई में कमजोर है। हम बोला तो क्या है ऐसा, सहमा सहमा, डरा डरा हमारा आंख पर उसको लगा बात कर। तो बोले कि डॉक्टर साहब, बाप से डरता है तो पढ़ाई लिखाई में का मामला में बाप जो है ना बहुत सख्त है। तो 7 में भी किसमें फेल हो गया, तो डांटे। तो डांटने के बाद ये 8वां में भी, 8 क्लास में भी 1-2 सब्जेक्ट में फेल हुआ। तो और दिन से 5 उतने करते हैं, डांटे थे, थप्पड़ भी मारे थे। तो हम बोला थोड़ा हमको सोच के बताइएगा। बोले अब्बा से डर, बोला हाँ बहुत डरता है, और सख्त आदमी भी है। तो हम बोला क्या वो डांटे ही तो फिर उसके बाद ही से है क्या? बोले हाँ, उसके बाद ही से डॉक्टर साहब इसका भूख वूख कम हो गया, डरा रहता है टीचर से भी, बुखार आ जाता है, तबीयत ठीक नहीं रहता है। हम बोला तो इसके अब्बू नहीं था। बोले तू तो उतना समझाता नहीं होता है, पढ़ाई के डर से करता है, पढ़ना नहीं चाहता है, नहीं, तो बाप से बहुत डरा रहता है। तो तब हम समझ गए वही मामला है। और तब अकेला में बच्चा से पूछा, वो लड़का से, बोले अब्बा से बोले एकदम हर वक्त दिमाग में टेंशन रहता है, ख्वाब में सपना में भी अब्बा का देखता है कि डांट रहे, बिगड़ रहे हैं, अब्बू के सामने कैसे आएंगे। अब्बू ऑफिस जाते हैं, अब्बू फिर आने के टाइम में डरा रहता है, कहाँ अब्बू बुला लें, अब्बू क्या बोलते हैं, कतराता है, डरा रहता है। बोले कि हमरा ये 2-3 साल रहता है, एकदम टेंशन सोचते एकदम डरा हुआ, फिर उसका गिर गया। हम बोला अच्छा, इस तरीका का एक केस बताना बहुत पसंद, बिलाल है।
हम ये कर रहे हैं, उनका सेमिनार है, उन लोग से बात कर लीजिए। तो वो तो उसको जब जब हम समझा, उन्होंने बोले, हम लोग का बात बोले नहीं, कम करते, बिगड़े हुए हैं, हमको डर है, तो पढ़ के दिखाओ, पढ़ो। बोले पढ़ा भी नहीं जाता, पढ़ने का दिल भी नहीं करता है। तब देखा उसको, तब हम समझ के उनके अब्बू को हम बुलाया, अम्मी को समझा दिया। अम्मी बोले कि अब्बू से बात कीजिए ना, अब्बू को बुलाइए। तो अब्बू को बुलाया, बात किया, समझाया। तो हमने, बड़ा ब्यूटीफुल बात है। अब अब्बा बोले ठीक है, हम मिलेंगे। तो डिसिप्लिन वाला आदमी, तो उनको बैठाया, हमने कहा कि देखिए, आपको उससे प्यार से मिलना। मैंने कहा नारायण पड़ता नहीं है कुछ, हम लोग थोड़ा देखिए, अगर उसको खुदा न खास्ता कोई बीमारी पकड़ ले, टीवी लंग्स में पानी उनी आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। खाता पीता नहीं, फीवर आता है, बदन में दर्द होता है, बुखार है, टीवी पकड़ लेगा, लंग्स में पानी आ जाएगा, अभी खराब बीमारी हो जा रहा है, वो आपका दहशत में रहता है, डर में। हम बोला मेरा यही काम है, हमने केस टेकिंग कर लिया। तो बोला, हम बोला पढ़ेगा लिखा भी अच्छा से, आप मेरा बात हो। बोले बोलिए डॉक्टर साहब, आप आज जाइए, उसको प्यार से मिलिए, प्यार से बात कीजिए, बेटा अच्छा से पढ़ो लिखो, अब नहीं मारेंगे, नहीं डांटेंगे, आपका माथा छुएगा। बोले कुछ नहीं बेटा, अब पढ़ो तो मेहनत है, ऐसा कोई बात नहीं, तुमको डांटेंगे नहीं, तो बड़ा पेपर खराब भी हो जाए तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, तुम घबराओ, तो प्यार कीजिए, और की दवा होगा तब तो लेके आइएगा। तो ये तो हम लगी कर लीजिए, हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम उससे बात करेंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाए। नहीं तो हमको डर है इसको खराब बीमारी। तो किए हुए ये किए, उसमें चेंजेस आ गए, तब्दीली हो गई। मेरे पास आया और 9 में वो अच्छा रिजल्ट किया। अब बोला आपको प्यार मोहब्बत है, तो उसका बाप भी वही पर बोले नहीं डॉक्टर साहब, अब समझ गया। हम बोला सख्ती करनी, प्यार मोहब्बत, आप इधर हम तुमको डॉक्टर देगा, मेरा बाप है बेटा, मेरा भी दिल है, ऐसा होता। उनको समझाया, एक किया, फोन से बात किया, चेहरा देखा उसका, हट गया, और बहुत मेहनत करने का, नहीं अच्छे नंबर सब में पास। आपको प्यार मोहब्बत आए को नाइट रिपीटेड, 3-4 रोज तक रिपीटेड हम देते चले गए। फिर ट्रेनिंग दिया, सब बुखार उखार सब, भूख प्यास सब, नींद सब वापस। दैट इज होम्योपैथी। तो ये बोलना चाह रहे थे, और कि मतलब एक तरह से देविंदर हो गया 9 बजे। So this is the हाँ, hope so तो you अब पेशेंट understand. भी हर जगह, हाँ हम हो गया। Yeah. So you all understand. One lady, I think somebody questions about how to treat a fever in 1 year old. Hope so. After listening this conversation, after listening this discussion, hope so you can try to find out the reason behind it. Because as Dr. Shoaib Alam Khan sir said, concomitant symptoms are much more important during these acute cases. It doesn't matter these are acute cases or these are chronic cases. If you have concomitant symptoms, these are very, very important. And if you see this video 4, 5, 6 times, you will definitely find out the face, the anxious look in the यस patients. Will यस definitely find out how we can see, how we can observe. That's why observation is much more important here. यस What you see, what you, the patient disposition, as Organon says in aphorism number 211, 12, and 13, disposition of the patient is much more important. How यस patient react, how patient feel the problem, how patient trigger with these complaints. So hope so you all understand, hope so you will follow what today's session, today's discussion is going on. So time is not allowing us to go further. We will ask Dr. Shoaib Alam Khan sir. He
can give us time on another day. So because he has a very busy schedule, patients are waiting for him. So today we are going to stop this discussion now. And I would like to thank Dr. Shoaib Alam Khan for the wonderful discussion today. Hope so you all enjoy it today. And if you have any query, please send us. We will send this all query to Dr. Shoaib Alam Khan sir, so he can explain all this query in next session. So thank you so much, sir, for your time today. Thank you so much.